We have assembled here to discuss a very important issue: empowering our youth with the knowledge and skill sets of the 21st century. For me, this, in fact, is the most important dimension of our great nation's developmental story. I'm extremely happy to be here with you. More than 50% of Indian population is below 25 years. We enjoy an average age of 24 years today, while a large part of the world struggle with an aging population. I see India's youth as one of its biggest strengths and most valuable resources. I strongly believe that if India is able to invigorate its talent pool, its youth in one decade will be the engine of growth not just for India but for the world. If we convert our youth population into a skilled workforce, we can meet the entire world's workforce requirement. In line with this strong belief in youth power, Gujarat has invested substantial time and resources in facilitating their all-round development. We believe education and skill development are the most powerful mechanism for empowering our youth. With a holistic approach, we are increasing the reach of education and training. More importantly, we are also enhancing its quality. This is being done in line with the latest international trends in promoting innovation and nurturing human resources. And the results are visible for all to see. Gujarat presents the best picture in employment generation. A recent survey of Government of India says that Gujarat has the least unemployment rate. Gujarat also presents the best picture in development of skills, hard as well as soft. Many of our initiatives are now recognized as best practices nationally. To give a few leading examples, our I Create initiative is being hailed by everyone for its innovationness. Through Scope, we are building English language proficiency in the youth of Gujarat. Recently, we have launched Empower to prepare our youth in IT and electronic skills. Various other initiatives nurturing all-round development include the likes of Vaanche Gujarat, a drive for reading, Khel Mahakumbh, a statewide drive for encouraging various sports, Innovation Commission, choice-based credit system, and so on. Specific to the domain of skill development, Gujarat has given top priority to developing modern technical and professional skills in our youth. The Gujarat Skill Development Mission and Gujarat Council of Vocational Training aim to make each and every youth employable. Our industrial training institutes, IITs, play a central role in this. The number of IITs have increased fivefold over the last decade. Our IITs have been upgraded with new buildings, new machinery, and state-of-the-art infrastructure. Courses have been updated and the number and diversity dramatically expanded. 20 superior technology centers, STCs, have been launched
which provide specialized training using state-of-the-art technology. These are driven by industry, niche and future human resources demand. Examples would include STCs related to automobile servicing and solar technology. We have also opened a powerful window of opportunity by enabling ITI students to pursue diploma and engineering courses after their ITI education, thus widening their career horizons. One of the best parts of the story is that our efforts are powered through partnership with the industry. More than 50% of our ITIs are now running on PPP basis. Through partnership with a range of national and international companies and institutions. This is going to be further strengthened today with MOUs being signed for setting up new skill generation centers. My experience in Gujarat reaffirmed my strong belief that India must place at the top of its agenda the task of empowering its youth with knowledge and skill sets. We in Gujarat are already showing the seeds for the same. We remain committed to turning every young mind of Gujarat into a powerhouse of motivation, hard work and innovation. कुछ बातें आज बाहर जो समूह आए थे उनके लिए जो मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। इक्कीसवीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये हम बहुत लंबे अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन वो कौन सी ताकत है जिसके भरोसे हम ये कह रहे हैं, तो तुरंत जवाब मिलता है कि हमारी युवा शक्ति। लेकिन सिर्फ हाथ पैर है, उस युवा शक्ति के भरोसे देश विश्व की ताकत नहीं बन सकता। हमारे पास योग्य युवा शक्ति होनी चाहिए और योग्य युवा शक्ति का आधार होता है उसकी क्षमता, उसकी योग्यता। और उस क्षमता और योग्यता की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम विश्व के सबसे युवा देश होते हुए भी न हम विश्व को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, हम भी कहीं शायद अपने आप बोझ न बन जाए। और इसलिए बहुत दीर्घ दृष्टि से हमने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। और मेरा खुद का अनुभव यह है कि हम स्किल डेवलपमेंट पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन कर सकते हैं, सर्विस की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अल्टीमेटली इकोनॉमी जनरेट होने से क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और इसलिए इन चीजों पर बल देने की आवश्यकता रहती है। अब मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजनीतिक क्षेत्र, दुर्भाग्य ऐसा है कि उस क्षेत्र में ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं। और एक कवि सम्मेलन में कवि हमेशा कविता सुनाया करते थे कि एक मंत्री जी ने ड्राइवर से कहा, आज कार मैं चलाऊंगा। तो ड्राइवर ने कहा, सर मैं उतर जाऊंगा क्योंकि ये कार है, सरकार नहीं जो कोई भी चला ले। इसलिए मैं उस फील्ड से आ रहा हूं, लेकिन वहां भी कभी न कभी तो वक्त आएगा,
धीरे धीरे से लीडरशिप को लेकर के काफी कुछ बहस वहां भी हो रही है। लेकिन मेरे अनुभव बताओ, मैं जब मुख्यमंत्री के नाते काम करने लगा तो हर बार जब नया मंत्रिपरिषद मेरी बनती है तो मंत्रियों का जो स्टाफ होता है उनका मैं 1 वीक ट्रेनिंग करवाता हूं प्रोफेशनल लोगों से, और उसके कारण प्रोडक्टिविटी में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में इतना परिवर्तन आता है कि हर नागरिक को फील होता है यार कुछ बदल सा है। अब उसमें मोटिवेशन लेवल से ज्यादा महत्वपूर्ण था ट्रेनिंग। सिर्फ मोटिवेशन लेवल से काम चल जाता ऐसा होता नहीं है, ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हमारे यहाँ डांग जिला, हमारे ट्राइबल वहां बांबू का काम करते थे और पहले भी करते थे, कोई मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद करने लगे ऐसा नहीं था, करते थे, लेकिन क्वालिटेटिव चेंज लाना जरूरी था। तो हमने वहां से टीमों को नॉर्थ ईस्ट भेजा जहां बांबू पर इतना काम होता है। इन लोगों ने वहां ट्रेनिंग ली, सीखा, आज वो इतना बढ़िया गुड्स बनाते हैं। अब जब वो बनाने लगे तो उनको ध्यान में आया कि हमारा बांबू, उसकी क्वालिटी इस काम के लिए अनुकूल नहीं है। यानी जो कल तक जिस बांबू से काम कर रहा था उसकी खुद की ट्रेनिंग इतनी हो गई कि उसको बांबू ही में ही परिवर्तन ढूंढने लगा। तो हमने एक जेनेटिक काम करने वाली केमिकल इंडस्ट्री को कहना पड़ा कि हमारे बांबू की 2 गांठ जो होती है उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो, इस प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की हमें जरूरत है, तो आप रिसर्च करो। उन्होंने किया और हमने उस प्रकार के बांबू बनाना शुरू किया ताकि उनको जिस प्रकार का बांबू पर काम करना था वो बांबू उनको लोकली उपलब्ध हो। यानी अच्छा, अब जब वहां बांबू वहां है, ट्रेनिंग हो चुकी है, वो गुड्स तैयार कर रहा है तो मार्केट भी मिलने लग गया। और इसलिए मैं मानता हूं, अब मुझे याद है कि पहले हमारे यहाँ एयरपोर्ट जो था ये बस स्टेशन जैसा था। अहमदाबाद का एयरपोर्ट यानी एक बस स्टॉप पर आए ऐसा लगता था। अब एयर ट्रैफिक पिछले 15 साल में काफी बढ़ा है, हमारा एयरपोर्ट भी बड़ा सर्विस। अब उनको नौजवानों की जरूरत थी तो हमने कहा ठीक है भाई, अपन मिलकर के कुछ काम करते हैं। तो हमने एयरपोर्ट के सराउंडिंग 5 किलोमीटर रेंज में जितने नौजवान थे उनको इनवाइट किया और कोई 400 नौजवानों की 10 दिन की ट्रेनिंग की। तो उनको एयरपोर्ट पर ही, अब वो साइकिल पे आते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं और अपना घर चले जाते हैं। और इसलिए हम बहुत उसका मैपिंग करें, किस क्षेत्र में किस प्रकार के लोगों की रिक्वायरमेंट है। मैपिंग करने के बाद अगर ठीक से ट्रेनिंग करें तो आज जो होता है ना भाई, एक फैक्ट्री से लोग उठते हैं दूसरी फैक्ट्री में चले जाते हैं, वो भी तकलीफ कम होती है। दूसरा, क्लस्टर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फायदा होता है। सरकार ने भी डेवलपमेंट के समय क्लस्टर अप्रोच को मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे हमारा मोरबी है, मोरबी एक सिरेमिक का क्लस्टर बन गया है, तो हमने हमारी वहां की जो ITIs हैं उसके सिलेबस, वहां टर्नल फिटर की मुझे जरूरत नहीं है, वहां वायरमैन की जरूरत नहीं है, वहां मेरी ITI है इसका जो प्रीडोमिनेंटली सिरेमिक का पढ़ाएगी। अगर वहां प्रीडोमिनेंटली सिरेमिक का पढ़ाते हैं तो मेरे नौजवानों को वहीं रोजगार मिल जाता है, और इसलिए न घर छोड़ना पड़ता है न गांव छोड़ना पड़ता है उसको। और इसलिए हमने 200 स्कूल चालू कर दिए, 200 ITI चालू कर दिए, 50 है, इससे परिणाम नहीं मिलता है। आज जो भारत सरकार ने भी गर्व के साथ रिपोर्ट किया है कि पूरे हिंदुस्तान में नौकरी पाने योग्य युवकों में 4% बेरोजगार है, लेकिन उन्होंने ये भी गर्व से कहा है अकेला गुजरात ऐसा है कि जहां कम से कम बेरोजगार है, कम से कम बेरोजगार। और इसलिए अच्छा, हमने एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी है और एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ानी है, क्योंकि अगर हम हमारा एक्सपांशन नहीं करते इंडस्ट्रियल बेस का, इवन इन एग्रीकल्चर, तो हम एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कोप जनरेट नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कोप जनरेट किया, लेकिन अगर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए व्यक्तियों का विकास नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए
इन सबका इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। इन सबका जब इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है तो हम इच्छित परिणाम ला सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें आज दुनिया में चर्चा है, चीन के साथ हमारी स्पर्धा है, चीन से स्पर्धा है, 21वीं सदी हमारी है, तो किन बातों पर बल देने से हम चीन के साथ मुकाबला कर सकते हैं? एक तो मेरा मत है कि हमारा स्कोप बहुत वाइड करना चाहिए। आज अगर हम 200 प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं तो वो 2000 प्रकार की ट्रेनिंग कैसे देना शुरू करें, 20,000 प्रकार की ट्रेनिंग कैसे देना शुरू करें? हमारे स्कोप को बहुत वाइड करना चाहिए। दूसरा, हमारा स्केल बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा, हमें स्किल बढ़ानी पड़ेगी। और चौथा, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर इन चारों को मेलजोल करके हम काम करते हैं, स्कोप, स्केल, स्किल एंड स्पीड, इन चारों पर अगर हम बल देते हैं, तब जाकर के हम हमारी पूरा युवा शक्ति को इस निर्माण कार्य के अंदर हम जोड़ सकते हैं और तब जाकर के हम परिवर्तन लाते हैं। अब हमारे यहां होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं। होटल मैनेजमेंट सरकारें चलाती है, लेकिन कभी सरकार को विचार नहीं आता है कि इस होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का हम भी कैसे फायदा उठाएं। हमने एक प्रयोग किया। हमारे जितने गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के स्टाफ है, क्लास 4 के जो एम्प्लॉई हैं, उन सबको मैंने सैटरडे संडे गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटैलिटी कॉलेज है उसमें पढ़ने के लिए भेजा। और मैंने कहा, भाई तुम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में चादर कैसे रखे, पिलो कैसे रखे, चाय कैसे देनी, तुम सीख के आओ ना। उसको नौकरी कैसे मिली? कोई पहचानदार किसी ने कह दिया, भाई जरा बच्चा है रख देना, तो रख लिया। किसी ने ट्रेनिंग नहीं की। अब ये पूरे देश में स्थिति है। लेकिन अगर हमारे दृष्टिकोण में ट्रेनिंग है तो हम अब मेरा दो फायदा हो गया कि सैटरडे संडे मेरी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका भी उपयोग होने लग गया। इन नौजवान 2 दिन जाकर के आते हैं, बहुत विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, वो अपना सीखने लगते हैं। अब हमारे यहाँ गुजरात में एक समस्या रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ मगन भाई 5वां, मगन भाई 8वां एक बहुत बड़ी चर्चा थी। 2 लीडर थे, तो 5वें से अंग्रेजी या 8वीं से अंग्रेजी वही झगड़ा चला रहा है कई वर्षों तक। और उसके कारण बाय एंड लार्ज हम गुजराती भाषी गुजराती में बातचीत करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा का हमारा अब धीरे धीरे समय बदल गया। तो हमने एक बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात में मूवमेंट चला स्कोप, और उसके अंदर हम अंग्रेजी उसको सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए कोशिश किया। हमारा अनुभव यह आया कि 40, 45, 50 साल की गृहिणी भी ये अंग्रेजी का स्कोप सीखने गई। तो मेरे लिए सरप्राइज था। मैंने कहा, भाई ये झूठी बातें हो सकती है, ये फिगर बढ़ा रहे हो और पेमेंट लेने के लिए कुछ खर्च चल रहा है, क्योंकि कोई कारण नहीं, क्यों कोई 40, 45, 45 में। तो मैंने जरा जांच कर रही, बहुत सरप्राइज मुझे आंसर मिला। उन माताओं ने कहा कि हमारे बच्चे मीडियम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और घर आकर के हमारे और उनके बीच में कम्युनिकेशन में गड़बड़ होता है। तो हमें जरूरी लगा कि हम भी थोड़ा बहुत बच्चों को खुश करने के वाली 2, 4, 10 बातें सीख लें। और इसलिए हम हाउस वाइफ हैं लेकिन सीखना शुरू किया। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो सामान्य मानवी को भी सीखने की इच्छा होती है, वो अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक होता है। और इसलिए हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क को अब जैसे अच्छा कुछ जरूरी नहीं है कि सब प्राइमरी ट्रेनिंग हो गई तो काम हो गया, ऊपर जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप देखिए अस्पताल में हम देखें तो एक अस्पताल के अंदर मोर देन 600 टाइप पैरामेडिकल एक्टिविटी होती है, मोर देन 600 टाइप। अब आज क्या होता है, एक आदमी आता है 5-7 दिन साथ रह करके वो सीखता है इस मशीन को ऐसे उठाना, ऐसे रखना, फिर वो डॉक्टर को देना, लेकिन उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती है। आज कितना स्कोप है, सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्री हम देख लें, यानी हॉस्पिटल सर्विसेज के देख लें, मैं मानता हूं थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज आर रिक्वायर्ड। हमने एक बार, क्योंकि मैं काफी रुचि लेता हूं इस विषय में, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें से बदलाव इसी से आना है, तो मैंने एक दिन हमारे अफसरों की मीटिंग की, तो वो कोई सोच रहे थे 50 कोर्स नए करेंगे, 70 कोर्स नए करेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है,
एक काम करो, जन्म से मृत्यु तक हर व्यक्ति को कितने प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, सूची बनाओ। जन्म से मृत्यु तक। तो उन्होंने मोटी सूची बनाई ऐसे ही, करीब करीब 976 उन्होंने निकाले कि इतने प्रकार के उसको झूला चाहिए, उसको खिलौना चाहिए, उसको गुलदस्ता चाहिए, उसको किताब चाहिए, उसको टेबल कुर्सी चाहिए, उसको सोने के लिए खटिया चाहिए। करीब 976 प्रकार की चीजों की जन्म से मृत्यु तक में मनुष्य को अनिवार्य बड़ी जरूरत होती है। अब ये तो उन्होंने सरसरी नजर से बनाया था, कोई अगर बैठेगा तो 9000 भी निकाल सकता है। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि 976 सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, इसका मतलब हुआ कि उनकी ट्रेनिंग चाहिए। अब मान लीजिए गुलदस्ते की जरूरत है, गुलदस्ता बनाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। क्यों वो पिता के पास बेटा सीखा, बेटे के साथ दूसरा बेटा सीखा, तो क्वालिटेटिव चेंज नहीं आता। और इसलिए अगर हम एक एक चीज में बारीकी से देखें तो हमारे यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर चेंज लाना है, तो हमारे प्रोडक्शन में चेंज लाना है, तो हमारे वर्क कल्चर में चेंज लाना है, तो हमने ग्लोबल मार्केट को कॉम्पीट करने के लिए हर प्रकार की सेवाओं में सुधार लाना है, तो हमारे साथ नॉलेज के साथ स्किल बहुत अनिवार्य है। और जहां स्किल को डेवलपमेंट में बल दिया जाएगा, हम बहुत अभी हमने हमारे यहाँ बायसेग है, यहाँ नजदीक में गांधीनगर में इंस्टीट्यूट है, कभी आप लोगों को रुचि हो तो देखने जैसा है। सैटेलाइट के माध्यम से जो इंजीनियर्स हैं उनको हम एम्प्लॉयबल बनाने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और स्टूडेंट को देते हैं। वो अगर बाहर पढ़ने जाता है तो उसकी फी 20-20 हजार रुपया होती है। अब हर विद्यार्थी 20 हजार रुपया खर्च करे संभव नहीं, तो हमने लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन शुरू किया और हमने कहा सिर्फ तुम 100 रुपया सीरियसनेस है कई बार इसलिए तुमको भरना होगा, और शाम को समय हम लॉन्ग डिस्टेंस है। हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की और आज हमारे हजारों इंजीनियर्स इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करने के 6 महीने पहले इन कंपनियों के लिए एम्प्लॉयबल हो सके उसकी ट्रेनिंग उनकी हो जाती है। यानी हम अगर इन चीजों पर बल दें तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गुजरात ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी महत्व दिया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के कारण भी हमारे यहाँ काफी बड़ी मात्रा में कुछ हम इनोवेशन भी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ परंपरागत रूप से मांडवी, कच्छ मांडवी ये जहाज बनाने का उद्यम करता था आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, और बड़े जहाज बनाना काम वो करते थे लकड़ी के। अब धीरे 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 कुछ ही परिवार बच गए, तो हमने वहां स्पेशल आईटीआई शुरू। उस आईटीआई के सभी स्टूडेंट का यही काम है कि वो नाव बनाना, जहाज बनाना, उसका ही उनका ट्रेनिंग हो। आज मांडवी का वो बंदर हमारा मरा पड़ा था, धीरे 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 उनको मांग बढ़ने लगी और उनको काम मिलने लगा, और वहीं के लोकल लोग जिनका पूर्वजों का ये व्यवसाय था उनको क्षमता थी, धीरे धीरे वहां काम शुरू करने लिए डेवलप होने लगा। मेरे यहां उमरगांव से अंबाजी पूरा ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल के वहां पर लोकल एम्प्लॉयमेंट की, जैसे हमने केले में केला पैदावार करना तो परंपरागत से किसान करता है, लेकिन केला पैदा होने के बाद वो जो वेस्ट रहता है उसको हटाने का पहले किसान को 15,000 रुपया खर्च होता था 1 एकड़ पर। आज उसमें हमने वैल्यू एडिशन किया है, ट्रेनिंग दी है किसानों को, और उसमें से चीजें बनने लगी हैं, तो आज वो 1 एकड़ में 20-25 हजार रुपये कमाता है। तो ट्रेनिंग से हम इतना बदलाव ला सकते हैं और इकोनॉमी को इतना जनरेट कर सकते हैं, और इसलिए स्किल डेवलपमेंट उस मिशन को हम जितना बल दें, जितना साइंटिफिक बनाए, उतना लाभ है। गुजरात ने अपने आप क्षेत्र में इस दिशा में काफी कुछ किया है। हम देश के लिए भी उपयोगी हो इस प्रकार के काम को कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है, और जैसा आपने देखा करीब 26 डिस्ट्रिक्ट में एक एक कंपनी टोकन, वैसे तो काफी एमओयू होने वाले मुझे बताया। और हम चाहते हैं, हम जब वाइब्रेंट समिट करते थे काम करते हैं, वाइब्रेंट समिट में जो एमओयू करते हैं उनको हम उसी दिन कहते हैं कि भाई
3 दिन के बाद एक सेमिनार होगा। आपको किस प्रकार का वर्कफोर्स चाहिए उसका पूरा डिटेल लेके आओ। तुम्हारी इंडस्ट्री को बनने में 2 साल 3 साल अगर कंस्ट्रक्शन में लगते हैं तो जैसे ही तुम करोगे उसके साथ तुमको तुम्हारे लिए रिक्वायरमेंट जो मैन फोर्स है, ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की, उसके लिए हम ट्रेनिंग अभी से करवा देते हैं। उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारे यहाँ एक गिफ्ट सिटी बन रहा है। अब आज हमारे गुजरात में इतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग कोई है नहीं, उतने बड़े टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रहे हैं। अब टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रहे हैं तो पुरानी पद्धति से जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है वो नहीं चलेगा। मुझे उस प्रकार के लिए स्किल, तो हमने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शुरू किया और उसमें भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं किया। हमने क्या किया, हमारी जो स्कूल है अहमदाबाद में चलने वाली, उस स्कूल को इवनिंग टाइम पे हमने कहा कि तुम इवनिंग में स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाओ, ताकि ये जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको थोड़ा 3 दिन का 4 दिन का ट्रेनिंग हो जाता है तो उस काम को कर लेता है। तो एक मूवमेंट के रूप में स्किल डेवलपमेंट को चलाना पड़ता है और उसका परिणाम सबको मिलता है। अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं और नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। वी हैव क्रिएटेड द इंस्टीट्यूट कॉल्ड आई क्रिएट हमारा एक ग्लोबल लेवल का इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। मिस्टर नारायण मूर्ति जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था उसके चेयरमैन के लिए, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उसके नेतृत्व में हम काम करें। जो भी इनोवेशन है, इतना स्पार्क भी 8वीं कक्षा के बच्चे में भी स्पार्क होता है। जिनके पास ऐसे इनोवेशन के स्कोप है उनके लिए आई क्रिएट में एक जगह है जहां आप वो आए, हम उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उसको रहने खाने की व्यवस्था देंगे और वो जो भी उसके आइडियाज हैं उस आइडियाज को धरती पर उतारें और कॉमर्शियल मॉडल कैसे तैयार हो उसके लिए उसको जो भी नो हाउ की जरूरत है वो मिले, उसको फाइनेंशियल हेल्प मिले। वहां तक का काम करने वाली एक आई क्रिएट संस्था, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हमारी अंडर प्रोसेस है। मिस्टर नारायण मूर्ति के नेतृत्व में काम चल रहा है, उसका भवन अभी बन रहा है। लेकिन अभी से हमने लोगों का कांटेक्ट करना शुरू किया है, फैकल्टीज का है, स्टूडेंट्स का है और उसकी एक वेबसाइट भी है। काफी अच्छी मात्रा में नौजवान आगे आ रहे हैं और ग्लोबली शायद उसमें नौजवान मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हर लेवल पे स्किल डेवलपमेंट के काम को बल देते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लस्टर अप्रोच के साथ चाहते हैं, स्कोप भी बढ़ाना चाहते हैं, स्किल भी बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड भी बढ़ाना चाहते हैं और स्केल भी बढ़ाना चाहते हैं और हम और अधिक कैसे कर सकें उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज के इस दिवस भर का समारोह हमारे नौजवानों के लिए एक नई आशा का किरण बनेगा। हमारा नौजवान बेरोजगार रहे ये सबसे बड़ा देश का नुकसान है। उसकी शक्ति राष्ट्र के निर्माण में काम आए उस दिशा में। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी परंपरागत एग्रीकल्चर से बदलाव करके ट्रेन मैन पावर अगर लगाया तो बहुत वेस्टेज बच सकता है। हमारा अनुभव है पानी बचाने में ट्रेन मैन पावर का हमें बहुत बड़ा बल मिला है और इसलिए उन चीजों की ओर हम ध्यान देंगे, बहुत लाभ होगा। मेरी इस समारोह को, इस सेमिनार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।